हेलो एवरीवन। तो आज फिर नया एक टॉपिक है। नया टॉपिक क्या है कि एक 12th क्लास का फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स हैं। तो 3 न्यूमेरिकल्स हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो पहला न्यूमेरिकल है जो इंडेक्स न्यूमेरिकल्स है एनसीईआरटी बुक्स के 12th क्लास फिजिक्स के चैप्टर 2। तो इसमें से पहला न्यूमेरिकल है कि वर्क रिक्वायर्ड टू पुट टुगेदर दिस कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि 4 चार्जेस, देयर आर 4 चार्जेस, and to assemble these 4 charges one by one, what is the total work done in assembling these charges? 4 charges है, इस सबको assemble करने में कितना वर्क डन होगा ये निकालना है। फिर इसमें से बी पार्ट भी है। बी पार्ट ये है कि when a charge plus q naught charge is brought from infinity to this point E, that is at the center of the 4 charges, then what is the work done, extra work done। तो extra work done क्या होगा? तो पहले हम लोग यहाँ work done पढ़ेंगे in assembling this charge। तो जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पीक पॉइंट पे कोई चार्ज ला रहे हैं। इनिशियली कोई चार्ज यहाँ पे नहीं है, there is no any electric field present, सोर्स चार्ज कोई फील्ड नहीं है। That is when q1 charge is brought from infinity to this location, that is point P, then work done is 0. W1 is what? W1 0, because in bringing plus q charge from infinity at this point, no work is done because there is no any external field against which work is to be done. So work done in bringing first this charge is 0. Now when this charge, that is minus q charge, is brought from infinity to this point, then work is done because of the presence of this charge, and this charge plus q has electric field, तो ये electric field होगा, and due to this electric field work is done, and यहाँ पे इसके कारण पोटेंशियल हो जाएगा v1, that is plus q चार्ज के कारण जो ये डिस्टेंस है यहाँ से डिस्टेंस, इस डिस्टेंस तक यहाँ क्या हो जाएगा? पोटेंशियल v1 हो जाएगा। that means q minus q into v1 is the work done, w2 work done in bringing minus q charge at this point, or we can say this point, कुछ भी कोई भी चार्ज ले सकते हैं, इसको या इसको ले सकते हैं। तो हम पहले इधर से ला रहे हैं, तो ये क्या जाएगा? माइनस क्यू इंटू v1, तो माइनस क्यू इंटू v1 यहाँ कितना हो जाएगा? v1 ड्यू टू प्लस q चार्ज, तो q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड दिस डिस्टेंस, दैट इज g। दिस इज द वर्क डन W2। Now, in bringing plus q charge at point R, work done is, that is potential due to this point, that point this, and potential due to this charge at this point. That is potential at this due to this charges at this point multiplied by the charge plus q will be the work done in bringing the third charge, that is plus q charge at point R, that is W2, W3 is what? That is potential plus q into potential due to 1 and 2 चार्ज के कारण यहाँ पोटेंशियल है। तो q into potential due to this potential, यहाँ से आता है डिस्टेंस कितना? यहाँ से आता है d है, यहाँ से आता है d है, तो ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो इसका क्या होगा? d स्क्वायर प्लस d स्क्वायर का अंडर रूट, यानी d रूट 2। तो ये d रूट 2 डिस्टेंस हो जाएगा, यहाँ से आता है डिस्टेंस d है, तो इस ड्यू टू दिस पोटेंशियल इज q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट d रूट 2, एंड ड्यू टू दिस चार्ज, दैट इज माइनस q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट into d, this is the total potential, that is q into this is the work done W3। now in bringing this charge from infinity to this point, then at this point the potential due to this and due to this at this point, तो ये तीनों के कारण पोटेंशियल। तो यहाँ पे क्या होगा? W4, that is in bringing minus q charge, work done is minus q into potential due to 1, 2 and 3, तीनों चार्जेस के कारण जो पोटेंशियल यहाँ पे होगा वो लिखेंगे। तो माइनस q इंटू पोटेंशियल, तो ड्यू टू दिस पोटेंशियल कितना हो जाएगा? q बाय
4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, फिर इसके कारण -2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट d√2 t plus due to this, that is q by 4 pi epsilon naught into d. This is the work done. So in assembling these 4 charges, that is to put the 4 charges together, the total work done W is what? W1 plus W2 plus W3 plus W4. इन सारे चार्जेस को अगर हम जोड़ेंगे, वर्क डन को जोड़ेंगे तो हमें क्या देगा? टोटल वर्क डन मिलेगा। तो ये क्या था? W1 W2 W3 एंड W4। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा। तो सिंपलेस्ट फॉर्म इजी हो जाएगा सॉल्व करना। तो ये टोटल वर्क डन था। अब बी पार्ट है कि हाउ मच एक्स्ट्रा वर्क डन इज इन ब्रिंगिंग यू नॉट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट ई पॉइंट पे। तो यहाँ पे देखते हैं क्यू नॉट चार्ज को इन्फिनिटी से लाते हैं, तो सबसे पहले तो यहाँ देखते हैं कि यहाँ पोटेंशियल कितना है ड्यू टू दिस, दैट इज प्लस क्यू चार्ज पोटेंशियल एट दिस पॉइंट इज व्हाट? क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी बाय d√2 बाय 2 d√2 बाय 2, दैट इज यहाँ से आती है डिस्टेंस d√2 बाय 2 हो जाएगा। ये तो प्लस हो गया। अब ये भी प्लस है तो इसके कारण पोटेंशियल क्या हो जाएगा? यहाँ पे इसके कारण पोटेंशियल ये प्लस हो जाएगा, दैट इज 2 टाइम्स हो जाएगा। और इसके कारण पोटेंशियल माइनस में, इसके कारण पोटेंशियल माइनस, दैट इज टोटल पोटेंशियल एट दिस पॉइंट इज व्हाट? 0, दैट इज टोटल पोटेंशियल 0 है। सो वर्क डन इन ब्रिंगिंग क्यू नॉट चार्ज, दैट इज W4 W नॉट कह सकते हैं क्या है? क्यू नॉट इंटू यहाँ V नॉट, तो V नॉट क्या है? 0 है, दैट इज क्यू नॉट तो है प्लस इंटू V नॉट इज 0। सो वर्क डन इन ब्रिंगिंग क्यू नॉट चार्ज इज 0। सो इसमें कोई वर्क डन नहीं होगा क्यू नॉट चार्ज को लाने में। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन पढ़ेंगे। सेकंड क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट? डिटरमाइन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 चार्ज सिस्टम। तो 2 चार्ज सिस्टम है और 2 चार्ज सिस्टम के कारण हमें यहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा ये सिस्टम को, दैट मीन्स कि कहने मतलब है कि Q1 चार्ज को इन्फिनिटी से यहाँ रखेंगे, Q2 चार्ज को इन्फिनिटी से यहाँ रखेंगे, तो इसको असेंबल करने में कितना वर्क डन होगा? तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? जो वर्क डन होगा वही क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। तो W डायरेक्ट लिखेंगे कि इस चार्ज को W1 0 हो जाएगा और इस चार्ज को लाएंगे यहाँ से ड्यू टू दिस चार्ज यहाँ पोटेंशियल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? W1 प्लस W2, W1 तो 0 है, W2 कितना? W2 हो जाएगा। कौन सा चार्ज को ला रहे हैं? Q2 चार्ज को लाएंगे और किसके पोटेंशियल? V1 पोटेंशियल। तो यह क्या आ जाएगा? Q2 इंटू V1, V1 कितना आ जाएगा? Q1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से आकर डिस्टेंस R12 लिख सकते हैं, R12 दैट इज दिस इज Q1 इंटू Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12। और R12 कितना दिया गया? R12 यहाँ से आकर -9 और यहाँ से आकर यानी टोटल डिस्टेंस कितना होगा? R इक्वल टू R12 इज 18 सेंटीमीटर। तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं नाउ कैलकुलेटिंग by putting the values, that is Q1 is what? Q1 is 7 into 10 to the power micro, that is -6 into Q2, that is -2 into 10 to the power -6, और 1/4 फ्रैक्शन का वैल्यू होता है 9 into 10 to the power 9 all divided by R12, that is 18 into 10 to the power -2 meter. This is solving this we get the work done। तो कितना हो जाएगा? 9 1 जा 9 2 जा 2 कैंसिल, दैट इज 7 और माइनस, दैट इज -7। ना पावर्स ले लेते हैं, पावर्स कितना है? ये -2 पावर से ऊपर चला जाएगा, ठीक है, +2 पावर +2 और +9, दैट इज +11 एंड 12 +11 यानी 10 to the power -12 into 10 to the power +11, दैट इज आ गया -7 into 10 to the power -1, that is it becomes -0.72. This is the work done, and this work done is stored in the form of potential energy in assembling this charge system। तो ये -0.72 हो गया। इसमें भी पार्ट है,
how much work is required to separate the work two charges infinitely away from each other. अब इसको असेंबल करने में कितना वर्क डन हुआ, इतना वर्क डन हुआ या इतना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुआ। अब इसको क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे बहुत दूर इनफाइनाइट डिस्टेंस तक, तो उसमें बता रहा है कितना वर्क डन होगा। तो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन जो होता है W इक्वल टू चेंज माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, है ना। माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, मतलब फाइनल पोटेंशियल U फाइनल माइनस U इनिशियल, वर्क डन दैट इज चेंज इन पोटेंशियल U फाइनल माइनस U इनिशियल। U फाइनल आगे इनफाइनाइट लिया गया है, इनफाइनाइट डिस्टेंस U फाइनल कितना होता है, 0, इनफिनिटी पोटेंशियल एनर्जी कितना 0 होता है, माइनस इनिशियल पोटेंशियल माइनस 0.7 जूल, तो ये कितना माइनस प्लस दैट इज प्लस 0.7 जूल ऑफ वर्क इज required to be done in separating the two charge system from this location to infinite distance. Now इसमें क्या है, तीसरा क्वेश्चन थर्ड पार्ट, that is if the electric field is this and A का वैल्यू इतना दिया गया है तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। तो पोटेंशियल इस सिस्टम को पूरा रख देंगे इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, तब इन असेंबलिंग दिस चार्ज टू चार्ज सिस्टम व्हाट इज द टोटल वर्क डन। तो टोटल वर्क डन हम लोग यहाँ निकालेंगे, टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, तो टोटल वर्क डन यहाँ निकालेंगे। दैट इज पोटेंशियल कितना है, पोटेंशियल जो हो जाएगा वो V R के टर्म में आ जाएगा E डॉट R, और E डॉट R कितना हो जाएगा A बाय R हो जाएगा। दिस इज यह लोकेशन कितना किया है 9 सेंटीमीटर, ये 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर। देयरफॉर जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा पूरे ये दो चार्ज सिस्टम को, पहला Q1 चार्ज हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा Q1 V1 हो जाएगा R1 के टर्म में, और प्लस Q2 V2 हो जाएगा R के टर्म में, प्लस Q1 इंटू Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और R1 हो जाएगा R1 तो दैट इज जब इस चार्ज को रखेंगे इस फील्ड में तो क्या होगा, वर्क डन नहीं, पोटेंशियल रखेंगे तो Q1 V1 अनपोटेंशियल इसके कारण पोटेंशियल होगा, और जब इस पॉइंट में होगा तो इसके कारण भी तो पोटेंशियल होगा, तो इस कारण पोटेंशियल कितना जो V1 हो जाएगा, तो V1 का वैल्यू कितना देते हैं, तो V1 मतलब इस चार्ज के कारण ड्यू टू Q1 चार्ज के कारण, तो Q1 चार्ज के कारण क्या है Q1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाय इनटू R हो जाएगा, ये डिस्टेंस R1 टू, और Q कौन सा चार्ज खुला है Q2 चार्ज खुला है, ठीक है, जब वर्क डन हो जाएगा रिंग, यानी इस चार्ज को जैसे ही लाएंगे सोर्स के प्रेजेंस में तो क्या होगा, पोटेंशियल ड्यू टू सोर्स एंड पोटेंशियल ड्यू टू दिस, दोनों के कारण पोटेंशियल यहाँ आएगा, तो ये वाला टर्म आ जाएगा Q2 कॉमन हो जाएगा, तो पोटेंशियल ये वाला पोटेंशियल और ये वाला पोटेंशियल, ये पोटेंशियल आ जाएगा, और ये Q2 क्या हो जाएगा कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे Q1 का वैल्यू कितना है 7, यहाँ 7 इंटू 10 टू द पावर -6, और V1 का वैल्यू हो गया, V1 का वैल्यू यहाँ से ले लेंगे, A का वैल्यू A बाय R कितना है 0.9, दैट इज 9 इंटू 10 टू द पावर -2, ये हो गया, प्लस Q2 माइनस 2 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू V2 कितना है वही A बाय R का वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर -2 ये हो जाएगा, फिर प्लस Q1 एंड Q2 का वैल्यू कितना आया था, Q1 Q2 का वैल्यू आया था -0.7, तो इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे A का वैल्यू दिया गया है, A का वैल्यू कितना है, A का वैल्यू यहाँ दिया गया है, तो A का वैल्यू है यहाँ पे 7 इंटू इतना मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये -2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 इंटू 10 टू द पावर -4 हो जाएगा, इंटू A का वैल्यू आ गया 9 इंटू 10 टू द पावर 5, तो ये तो कॉमन हो जाएगा दोनों से, इसे भी लिख सकते हैं, फिर यहाँ माइनस हो जाएगा, तो ये और ये कट गया, तो -1 आएगी 2 इंटू 10 टू द पावर -4 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 5, और ये -0.7, तो यहाँ से ये और ये तो कॉमन हो गया, यहाँ से ये भी कॉमन हो गया, पहले 7 - 2 का कितना हो गया 5 हो गया, और इंटू में 9 हो गया,
और इंटू में 10 टू द पावर 5 हो गया, इंटू में 10 टू द पावर -4 हो गया, है ना। यहाँ पे कॉमन लीजिए ये दोनों, यहाँ ये दोनों आ गए कॉमन, और 9, हाँ ठीक है। इस बार से -0.7, इस बार से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 5 45 इंटू 10 टू द पावर +1 -0.7, तो ये आ जाएगा 45 × 450 -0.7, तो ये आ जाएगा 449.32। तो ये पोटेंशियल एनर्जी यहाँ इसमें स्टोर हो जाएगा। दैट मीन्स इसको इस शॉर्ट चार्ज के कारण अगर हम वर्क निकालेंगे तो ये पोटेंशियल एनर्जी कितना स्टोर हो जाएगा, 449.3। तो ये इस तरह का है। अब तीसरा क्वेश्चन इसी में है। तीसरा क्वेश्चन है कि व्हेन अ मॉलिक्यूल हैज डायपोल मोमेंट, एक मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट 10⁻29 सेंटीमीटर है, और अगर एक मोल ऑफ सब्सटेंस को अगर रख देते हैं किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, जो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया गया, इलेक्ट्रिक फील्ड 10⁻6 वोल्ट पर मीटर दिया गया, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, उसमें डायपोल मोमेंट डेवलप होगा, और ये डायपोल मोमेंट जो डेवलप होगा और ये फील्ड को सडनली क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं बाय एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। जब 60 डिग्री से चेंज कर देते हैं तो डायपोल मोमेंट क्या हो जाता है, अलाइन हो जाता है न्यू पोजीशन में। तो उसमें जो हीट प्रोड्यूस होगा, दैट इज एस्टिमेट द हीट रिलीज्ड बाय द सब्सटेंस इन अलाइनिंग इट्स डायपोल अलोंग द न्यू डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। और यह मान के चलते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि पोलराइजेशन जो है वो 100%, यानी पोलराइजेशन हर मॉलिक्यूल के कारण होगा। तो सिंस डायपोल मोमेंट ऑफ वन मॉलिक्यूल इज 10⁻29 कूलम्ब मीटर है, देयरफॉर टोटल डायपोल मोमेंट, यस मोल, टोटल डायपोल मोमेंट P इज फॉर 1 मोल के लिए, एक मोल के लिए डायपोल मोमेंट कितना हो जाएगा, 10⁻29 इंटू 1 मोल का होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स होता है। एक मोल में कितना होता है, दिस नंबर इज मॉलिक्यूल्स, और टोटल डायपोल मोमेंट हो जाएगा, इतना मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट मींस कितना हो जाएगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम्ब मीटर। तो ये आ जाएगा टोटल डायपोल मोमेंट। अब टोटल डायपोल मोमेंट तो इनिशियल जो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी वो क्या होता है, -P.E होता है, और ये क्या हो गया PE cos थीटा होता है माइनस में, तो ये कितना हो गया -P का वैल्यू कितना दिया गया है 6, राउंड ऑफ में ले लेते हैं 6 only 6 इंटू 10 टू द पावर -6, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया है 10 टू द पावर +6 इंटू cos 0 ले लेते हैं, इनिशियली कितना 0 है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन पैरेलल है, एक दूसरे के पैरेलल है। तो ये कितना आ जाएगा 6 इंटू 10 टू द पावर 0 इंटू 1, दैट इज ये -6 आ गया, -6 इनिशियल। अब फाइनल जो डायपोल मोमेंट हो, इनिशियल पोटेंशियल, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होगा, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी वही PE cos 60 डिग्री होगा, क्योंकि ये 60 डिग्री से क्या किया जा रहा है, चेंज किया जा रहा था सेकंड, तो cos 60 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस P का वैल्यू से वही चीज रहेगा 6 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू 10 टू द पावर +6 इलेक्ट्रिक फील्ड एंड cos 60 का कितना वैल्यू है, cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है, ये कट जाएगा, और ये 2 3 दैट इज -3 कूलम्ब। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी -3 जूल और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी -6 जूल। देयरफॉर हीट रिलीज दैट इज जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वैल्यू होगा, चेंज इन पोटेंशियल क्या आ जाएगी, U फाइनल माइनस U इनिशियल, और U फाइनल कितना -3 और -6 दैट इज कितना -3 + 6 दैट इज +3 जूल। So this is change in potential energy, and this is the potential energy which is radiated or released in the form of heat energy। तो heat energy के फॉर्म में ये क्या हो जाता है, रिलीज होता है, रेडिएट हो जाता है। ये 3 न्यूमेरिकल्स था 1 by 1 जो मैंने एक्सप्लेन किया ब्रॉडली, और नेक्स्ट इसी तरह से थ्योरी 3rd चैप्टर हम लोग चलेंगे फिजिक्स का।
करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि आपको नेक्स्ट नए वीडियो मिलता रहे। और कोई भी डाउट्स हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें। थैंक यू।